آج صبح سے ہی ہمارے ضلع اسپتال میں بھاری افراتفری، بھینکر ڈر اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ تبلیغی جماعت کے 19 لوگ گرفتار کر کے اسپتال لائے گئے تھے۔ تبلیغی تو کورونا کو اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہے۔ مارچ 2020 کووڈ-19 کورونا مہاماری کی فرسٹ ویو۔ کووڈ-19 کورونا نے دنیا کے کئی دیشوں سے ہوتے ہوئے انڈیا میں اپنے پیر پسارے اور اچانک سے دیش بندی یعنی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ جو جہاں پر تھا وہیں اٹک گیا اور دیش نے سرکار کی بھینکر مس ہینڈلنگ کو تو جھیلا اور خوب بھگتا ہی، لیکن زیادہ تر میڈیا نے تبلیغی جماعت کے کندھے پر بیٹھ کر دیش بھر کے مسلمانوں کو ایسا پروپیگنڈا کر کے خطرناک روپ سے زہر پھیلایا اور بدنام کیا کہ دیش کے عام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ لوگ ہی کورونا وائرس کو پھیلا رہے ہیں، یہ ہی لوگ جیتے جاگتے کورونا ہیں۔ آج صبح سے ہی ہمارے ضلع اسپتال میں بھاری افراتفری، بھینکر ڈر اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ تبلیغی جماعت کے 19 لوگ گرفتار کر کے اسپتال لائے گئے تھے، جنہیں اسپتال کے باہری حصے میں ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے خستہ حال جرجر بلڈنگ کو وارڈ بنا کر اس میں رکھا گیا تھا۔ میڈیا نے ان کو کورونا پھیلانے کا آروپی نہیں بلکہ لگ بھگ خطرناک دردانت آتنکوادی اور دیش دروہی گھوشت کر رکھا تھا۔ اسپتال کا پورا اسٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، ٹیکنیشینز، وارڈ بوائے اور سیپرز تک سبھی ان سے بے حد گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان دنوں تو میڈیا نے ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کو انسان نہیں بلکہ لگ بھگ کورونا پھیلانے والا کیڑا بنا دیا تھا۔ اس پروپیگنڈا کا مایا جال اس طرح سے رچا گیا کہ عام جن مانس کے من مستشک میں یہ بھر دیا گیا کہ یہ تبلیغی لوگ وائرس کو اپنے اندر لے کر چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور یہ جگہ جگہ تھوکتے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر چیزوں کو چھو رہے ہیں اور کورونا پھیلا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو اتنا ڈرا دیا گیا، نفرت اتنی پروس دی گئی کہ لوگ ایسے ہو گئے، یا خود لوگوں نے بھی یہ سوچنے سمجھنے کی زحمت نہیں کی کہ اگر ان کو کورونا ہے تو یہ خود کیوں نہیں مر رہے، کیول کورونا پھیلا کیسے رہے۔ معاف کیجئے گا، یہاں صرف اور صرف اسلاموفوبیا کام کر رہا تھا، اسی لیے ان کا یہ پروگرام، ان کا یہ پروپیگنڈا سکسیس ہو گیا۔ اسپتال میں اس وارڈ میں دھول گندگی کا انبار تھا، ٹوٹے پھوٹے پلنگ تھے، 2-3 پنکھوں کو چھوڑ کر سب پنکھے بند پڑے تھے، زیادہ تر لائٹس خراب پڑی تھیں، روشنی کے نام پر پورے وارڈ میں 1-2 ہی بلب جل رہے تھے۔ ان 19 لوگوں کے لیے صرف ایک ٹوٹا پھوٹا ٹوائلٹ اور ایک باتھ روم تھا۔ دوائیاں اور کھانا ان کو دور سے ہی پھینک کر دیا جا رہا تھا۔ ہر طرف ان کے پرتی حد سے زیادہ نفرت پھیلا دی گئی تھی۔ ایسا ڈر بیٹھا دیا گیا تھا جیسے ان کو دور سے ہی دیکھ لینے بھر سے کورونا ہو جائے گا۔ وارڈ کی انچارج سسٹر شیلا نرس بھی عام لوگوں کی طرح ان سے بری طرح ڈری ہوئی تھی، اور وہ بھی ان سے لگ بھگ نفرت ہی کر رہی تھی، لیکن مجبور تھی کیونکہ ان کی ڈیوٹی ان کے وارڈ میں جو لگا دی گئی تھی۔ وارڈ کے باہر دور سے ہی شیلا سسٹر چلاتے ہوئے، ہے سنو تم لوگ، میں تم لوگ کا ایک ایک کر کے نام پکارے گی اور تم وہیں دور سے اپنی اٹینڈنس یس بول کر دینا، ادھر آگے کوئی نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ پھر سسٹر نے نام پکارے اور ان لوگوں نے اپنی اپنی اٹینڈنس دی۔ اٹینڈنس لے کر شیلا سسٹر واپس جانے کے لیے مڑی تو اس جماعت کے ہیڈ، جن کو باقی لوگ امیر صاحب کہتے تھے، دراصل تبلیغی جماعت کے نیمانوسار ہر جماعت کا ایک امیر یعنی ان کا ہیڈ ہوتا ہے، جس کی بات باقی سبھی لوگ مانتے ہیں، اور یہ سبھی لوگ نیمانوسار آپس میں ہر معاملے میں رائے مشورہ کر کے ہی یعنی ڈسکشن سے ہی سب چیزیں طے کرتے ہیں، اور ڈسپلین کے نیموں کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں، پالن کرتے ہیں۔ امیر صاحب اندر سے ہی تیز آواز میں شیلا سسٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے لیکن نگاہ نیچی کیے ہوئے، شیلا سسٹر جی، آپ ہماری بہن ہیں، ہمارے لیے بہن کا درجہ رکھتی ہیں آپ، اور ہم سبھی لوگ آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے وارڈ کی ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ سسٹر ہماری ایک درخواست ہے۔ شیلا سسٹر بڑے روکھے انداز سے، کیا کہنے چاہتے ہو بولو۔ تو امیر صاحب جن کا نام تھا حمید اللہ بولے، میڈم یہ درخواست ہے کہ آپ کے اسٹاف کے یہ لوگ ہمیں کھانا پھینک کر نہ دیا کریں، کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ اپنے اسٹاف سے کہہ دیجئے کہ وہ وہیں دور وہ جو ٹیبل رکھا ہے وہاں رکھ کر دور ہٹ جایا کریں، پھر ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص کھانا اٹھا کر انشاءاللہ سبھی لوگوں تک پہنچا دیا کرے گا۔ سسٹر اللہ بڑا کارساز ہے، یہ ماحول، یہ حالات اور یہ آزمائش سب اللہ کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو اس پریشانی سے، اس دشواری سے نکالنے والا ہے۔ شیلا سسٹر روکھے انداز میں، ٹھیک ہے، کھانا یہاں ٹیبل پر ہی رکھوا دیا کریں گے،
लेकिन ये ध्यान रखना तुम लोग कोई परेशानी या प्रॉब्लम पैदा नहीं होनी चाहिए। जी सिस्टर, इंशाल्लाह हम लोगों की तरफ से आपको जर्रा बराबर भी कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद खाना पीना दूर उसी टेबल पर रखा जाने लगा। अब तीसरे दिन हमीदुल्लाह साहब शीला सिस्टर से, सिस्टर जी हम लोग यहाँ दिन भर बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो हमें कुछ सामान मुहैया करवा दें तो हम लोग ये पंखे, लाइट, लेटरिन, बाथरूम काफी ठीक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से ज्यादातर लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, अपने हाथों से काम करने वाले लोग हैं, अगर आप हमें ये कुछ सामान मुहैया करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो शीला सिस्टर कुछ सोचते हुए कि क्या सामान? जी वो जैसे सीढ़ी, टेबल, कुर्सी, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी, ग्रीस, ऑयल, कुछ स्क्रू, कीले, पेंट, ब्रश वगैरह। और सिस्टर अगर कुछ सीमेंट और रेत मिल जाए तो हम ये टॉयलेट, बाथरूम वगैरह की भी रिपेयरिंग कर देंगे। सिस्टर अगर अल्लाह ताला ने अभी हमारी और जिंदगी लिखी है, अगर अभी हमारी मौत नहीं लिखी है तो इंशाल्लाह हम तो कोई 2, 4 या 8, 10 दिन में या हो सकता है महीना भर में यहाँ से हमें चले ही जाना है, या फिर अल्लाह ताला की जैसी मर्जी होगी, अल्लाह ने जो सोच रखा होगा वो होगा। सिस्टर हम तो हर हाल में राजी रहने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन सिस्टर हमारे जाने के बाद ये बेकार पड़ा वार्ड आगे बाद में दूसरे इंसानों के काम आता रहे, लोगों को राहत और आसानी पैदा हो जाए, और हो सकता है इंसानियत के ऐसे नेक काम करवाने में अल्लाह ताला हम लोगों से भी कुछ काम ले ले और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बाकी सिस्टर हम लोग तो बहुत कम में, मुख्तसर में गुजारा कर लेने के आदी हैं, हमें तो तपती धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में मेहनत करने की आदत है, ये सब सहूलतें हमें अपने लिए नहीं चाहिए। बाकी सिस्टर आपकी मर्जी। शीला सिस्टर कुछ सोचते हुए कि चलो अपना तो अस्पताल का वार्ड ही ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सब सामान तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन देखो फिर बोल रही हूँ कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और अगले दिन सुबह ही सारा सामान जो हमीदुल्लाह साहब और उनके साथियों ने चाहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा सामान उनको दे दिया गया। और ये सभी 19 तबलीगी दिन भर नमाजें पढ़ते, जिक्र करते, दुआएं मांगते और खूब काम करते। और इन्होंने सिर्फ 2 दिनों में ही 10-12 पंखे, 8-10 ट्यूबलाइट्स ठीक कर दी, दरवाजे, खिड़कियां रिपेयर कर दिए, पेंट कर दिया और लेटरिन, बाथरूम रिपेयर कर दिए। यानी कुल मिलाकर इस पुराने टूटे फूटे वार्ड को ऐसा चमका दिया कि वो उस अस्पताल के दूसरे वार्डों से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। लेकिन वार्ड ठीक होते ही दूसरे दिन अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से एक फरमान आ गया कि सभी 19 जमातियों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट होना होगा। ये फरमान सुनाने अस्पताल के 2 नए कर्मचारी आए, लेकिन शीला सिस्टर करीब नहीं आई, वो दूर से ही खड़ी हुई देख रही थी। हमीदुल्लाह साहब और साथियों ने 1 मिनट की देर किए बगैर वार्ड को खाली करने की तैयारी की और सब ने खड़े होकर अल्लाह के सामने खूब रो रो कर दुआएं मांगी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और दूसरे वार्ड में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगे। उस वार्ड का हाल इस वार्ड से भी ज्यादा खस्ता था, इसलिए यहाँ इनके साथ चूहे और चमगादड़ भी रहने वाले थे। शीला सिस्टर थोड़ा झिझकते हुए आगे आते हुए बोली, हमीदुल्लाह भाई, ये आप लोग को जो दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश ऊपर से हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा बिल्कुल मर्जी नहीं है। हमीदुल्लाह भाई सही बताऊं तो मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही दुख हुआ मुझे। और ये सब बात करते करते शीला सिस्टर थोड़ी रुआसी सी हो गई। हमीदुल्लाह, अरे शीला बहन आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर हाल में राजी हैं। देखिए अल्लाह ताला हमसे कितना खुश है, जब तो हम लोगों से एक और वार्ड को रिपेयर करवाना चाहता है। आप तो अगर हो सके तो फिर उसी तरह से सामान मुहैया करवा दीजिएगा, तो हम लोग इस वार्ड को भी वैसा ही रिपेयर कर देंगे। और हाँ, आप हमारी ये बात अस्पताल के मैनेजमेंट तक पहुंचा दीजिएगा कि हम लोग जब तक यहाँ हैं ऐसे ही एक वार्ड को ठीक करने के बाद दूसरे वार्ड में कहीं भी शिफ्ट होने को तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। अब ये सब सुनकर शीला सिस्टर, अरे तुम लोग किस मिट्टी का बना है भाई, तुम्हारे साथ कैसा कैसा जुल्म हुआ, कैसा गंदा और बुरा बर्ताव हुआ, लेकिन तुम तो हमेशा पूरी इंसानियत, पूरी मानव जाति के भले की बात करते हो। तुम लोग हमेशा अपने अल्लाह से कैसे रो रो कर पूरी इंसानियत के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं करते हो। तुम लोग तो कभी किसी इससे कोई शिकायत ही नहीं करते, तुम तो हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहते हो। अरे हम लोगों ने रातों को तुम्हारी दुआएं मांगने की आवाजें आने पर यहाँ वार्ड के बाहर चिट चिट पर तुम्हारी बातें सुनी है, तुम्हारी दुआएं सुनी है,
तुम लोगों ने तो एक बार भी किसी को कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। कभी कोई शिकायत ही नहीं की, सबके लिए दुआएं करते हो, सारी दुनिया को इस बीमारी से बचाने की दुआएं करते हो, कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं करते, बड़े अच्छे से तमीज से पेश आते हो। तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा है कि तुम लोगों ने हमारे स्टाफ की किसी भी औरत को कभी आंख उठाकर तक नहीं देखा, निगाहें नीची करके बात करते हो। अरे तुमने तो मुझसे भी कभी ऊंची निगाह से आंखें मिलाकर भी बात नहीं की। भैया मैंने तो अपने जीवन में ऐसे इंसान कभी नहीं देखे, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। तुम सब लोग तो फरिश्ते हो, ईश्वर के दूत हो, क्या हो तुम लोग इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो भैया। हमीदुल्लाह भाई, मैं तो आप लोगों से माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। अगर हो सके तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना भाई। ये कहते ही शीला सिस्टर फूट फूट कर रोने लगी और उसके साथ में खड़े हुए देवेंद्र, सुरेश और जगदीश भी खूब जोर जोर से रोने लगे और हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगने लगे। अब हमीदुल्लाह भाई ने थोड़ा आगे बढ़कर लेकिन दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें चुप कराया और उसके बाद हमीदुल्लाह साहब और बाकी साथियों ने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दिया। हमीदुल्लाह साहब रो रो कर दुआएं मांग रहे थे, बाकी पूरे साथी भी फूट फूट कर अल्लाह से गड़गड़ा कर सारी इंसानियत के भले की और इस कोरोना बीमारी को खत्म करके दुनिया को इससे बचाने की दुआएं मांग रहे थे। अपनी रहमत की छांव में जगह दे दे, हमारे गुनाह माफ कर दे। हम तुझसे प्यार करते हैं, तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ। हम तेरे नबी से प्यार करते हैं, गवाह बनाकर कहता हूँ। हम तेरे नबी के सहाबा से प्यार करते हैं, हसन हुसैन से प्यार करते हैं, अली और साथ ही शीला सिस्टर, देवेंद्र, सुरेश और जगदीश सभी हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे, खूब रो रहे थे और पूरे अस्पताल में एक अजीब सी रूहानी सी मोहब्बत की बारिश सी हो रही थी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें आंसुओं से तरबतर थी, सबके दिल इन आंसुओं से ऐसे धुल रहे थे कि सारी गंदगी, सारी नफरत बह चुकी थी। दुआ पूरी हुई तो हमीदुल्लाह भाई और साथियों ने अपना अपना सामान उठाया और खामोशी से नीची निगाह किए हुए धीरे धीरे कुछ पढ़ते हुए दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए। तबलीगी जमात के इन 19 लोगों ने 2-3 दिन में ये वाला वार्ड भी रिपेयर करके चमका दिया और फिर ये सिलसिला ऐसा चला कि अस्पताल के कई हिस्सों में इन लोगों ने रिपेयरिंग करके कई चीजें ठीक कर दी। इन्होंने कई सारे पलंग, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, टेबल, कुर्सी ठीक कर दिए। इनके बेहतरीन अखलाक और मोहब्बत के सलूक के नतीजे में ये हुआ, अब कम से कम अस्पताल में तो डर और नफरत के माहौल की जगह मोहब्बत ने ले ली और दिलों में मोहब्बत के आ जाने, बस जाने से नफरत और डर जैसी बेकार फिजूल की चीजें वहां से गायब हो गई, चली गई। और आखिर आज पूरे 39 दिनों के बाद वो दिन आ गया कि इन 19 तबलीगियों की एक तरह से रिहाई का सरकारी फरमान आ गया। इनकी वापसी के वक्त अस्पताल का पूरा स्टाफ रोया, ये सब लोग भी खूब रोए और अब ये आलम है कि शीला सिस्टर इनकी सगी बहन की तरह बन चुकी हैं। हमीदुल्लाह भाई की बेटी की शादी में शीला फूफी भी तशरीफ लाई थी, देवेंद्र, सुरेश और जगदीश भी शामिल हुए थे और उधर शीला सिस्टर की प्यारी बेटी अंजलि की शादी में उसके मामू यानी हमीदुल्लाह साहब भी शरीक हुए थे। शीला सिस्टर और इनके स्टाफ ने आपस में मिलकर खुद से ही अस्पताल के उस वार्ड का नाम तबलीगी जमात वार्ड रख दिया है। इन सभी जमातियों और अस्पताल स्टाफ का फोन पर आपस में राब्ता, कांटेक्ट बना ही रहता है। अब शीला सिस्टर हमीदुल्लाह भाई से हर छोटी बड़ी बात के लिए दुआ करने को कहती हैं और हमीदुल्लाह भाई दिल से दुआ करते भी हैं और हर बार अपनी बहन शीला से कहते हैं कि बहन आप खुद भी मांगा करो उस पाक परवरदिगार से। इंसान अपने रब से खुद बात करे और मांगे तो उसकी बात अलग होती है, वो सबकी सुनता है, वो सबका है, वो रब्बुल आलमीन है, वो निहायत रहम करने वाला है, दयालु है, सर्व विद्यमान है, हर जगह है और उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। इसी तरह की सच्ची और बेहतरीन बातें बिल्कुल ही अलग अंदाज में देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप इस वीडियो को दूसरों को भेजे बगैर रह सकते हैं? नहीं ना? तो भेजिए, प्लीज अभी भेजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
اور ہاں، مسلمانوں کے ایک اہم سیاسی مسئلے پر ہمارا یہ والا ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے مسلمان اب دری نہیں بچھائے گا، ضرور دیکھیے گا۔